Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi. Subject Principles of Management, subject code 105 in your FI BBA in semester 1. As you are aware that we have started with the unit number 1, that is nature and scope of management, and we have already been covered the topic like meaning of management, definition of management, characteristics of management, management has science and art. And even in the previous video, we have go through the topic that management has a profession. So we know that we have identified that management has a profession with the help of the features of profession like specialized knowledge, acquisition of knowledge, service motive, ethical code, and professional association. With the help of features of profession, we identify management is also considered to be a professional course because we need to have a specialized skill or knowledge to manage the business. We need to acquire the knowledge so that we can manage the business in a more effective way and efficient way. And this management the business is like a service motive because we are serving towards the society. We need to manage the business in an ethical way, that is what is right for the business and what is wrong for the business. And every management is being run and managed by the all Indian management association, like CA is managed by chartered account. Okay, so that was your management as a profession. Now today we are moving towards the another topic, that is university of management. Now what is mean by university of management? It refers to transferability of its principles, techniques, and function, and even a skill from one place to another, from one place to another place, from one job to another. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट ये रिफर होता है कि इट इज नथिंग बट अ ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसकी टेक्निक्स जो है मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू फ्रॉम वन person to another, from one job to another, and even its function and skill are being transferred from one person to another person, from one place to another person, from one job to another. So it is believed that the principles of the management are applicable at every organization, whether it is a non-profit organization or a profit organization, and at every level equally, whether वो आपका bottom level हो, middle level हो कि top level है. So if one has a small retail store in Surat and one has a Gantt store in Paris, सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल बी अप्लाई बाय. एग्जाम्पल है कि कोई किसी का छोटा रिटेल स्टोर है सूरत में और किसी का बड़ा स्टोर है पेरिस में, उसका जो प्रिंसिपल है मैनेज करने का वो दोनों में सेम होगा. इट विल बी अप्लाई इन द सेम वे. सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज अ यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लीकेबल बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उसके टेक्निक्स, उसके फंक्शंस एंड उसके स्किल्स आर बीइंग अप्लाई इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सपोज वन पर्सन मैनेजिंग द बिजनेस इज मैनेजिंग द बिजनेस, ठीक है, तो वो जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर रहा था मैनेज करने के लिए, अभी नया बंदा हमने रिक्रूट किया, नए बंदे को सिलेक्ट किया, तो दैट प्रिंसिपल कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ न्यू पर्सन. लाइक दैट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट नथिंग बट easily transferability of its principal technique to every person, every job, to one person to another, from one place to another, from one job to another. अभी जो प्रैक्टिस है ना वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर रहता है. जो आपके नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रैक्टिस जो होती है वो डिफर रहते हैं. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो सेम रहेंगे बट उसका जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हो उसका जो तरीका होगा उसका वो डिफर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, सो दैट प्रैक्टिस विल बी डिफर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो वी कैन सी that principles can be applied to every organization but its practice and technique will be differ in every organization. Now in that favor only we will see that what are the आर्ग्यूमेंट विच फेवर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट. ऐसे कौन से आर्ग्यूमेंट है जो फेवर कर रहा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो एप्लीकेबल है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूनिवर्सिटी. ऐसे कौन से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है जो अगेंस्ट कहते हैं कि इट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट इज फर्स्ट वन, मैनेजमेंट हैज अ प्रोसेस. वी नो दैट मैनेजमेंट हैज अ प्रोसेस इज अ यूनिवर्सल.
universal because it means a function of planning. हमें प्लानिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, वो हमने डेफिनेशन में भी समझा था. प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड दिस आर द बेसिक एंड बीइंग परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर. हर एक मैनेजर यही करेगा, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा. हर एक मैनेजर जो है एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा जो एक्टिविटी करना वाले है टू मैनेज द बिजनेस वो सेम रहने वाला है. इसलिए दैट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस के थ्रू हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एज अ प्रोसेस इज यूनिवर्सल बिकॉज उसका जो प्रोसेस है फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोल इज बेसिक एंड इट इज परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो कि ओनर इन अ स्मॉल शॉप, ओनर जैसे कि स्मॉल बिजनेस में होगा तो मल्टीनेशनल का जो मैनेजर है दे परफॉर्म द सेम फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सबको क्लियर हुआ दैट मैनेजमेंट हैज अ प्रोसेस. ठीक है कि मैनेजमेंट हैज अ प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग थ्रू कंट्रोल. वो हर एक मैनेजर सेम परफॉर्म करने वाले हैं बिकॉज दिस आर द बेसिक एंड इट्स बीइंग अप्लाइड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर वो मल्टीनेशनल कंपनी हो कि स्मॉल बिजनेस का वो ओनर है वो सेम चीज करने वाला है, सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाला है. उसके बाद नेक्स्ट वन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स. वी नो दैट मैनेजमेंट फंडामेंटल एंड techniques are not same because fundamentals are the basic principles and the theory while techniques are the tool for performing the while techniques are the tools for performing the function. Fundamentals को हम कैसे में आइडेंटिफाई करेंगे? Fundamentals are nothing but the basic principles and the theory, but उसके जो techniques होगी they are considered to be techniques is considered to be a tool to perform that function. So techniques means an application of the fundamental and technique may vary in different situation but not the fundamental. Fundamental जो principles फंडामेंटल या बेसिक प्रिंसिपल एंड थियरी, प्रिंसिपल एंड थियरी जो मैनेजमेंट की है वो सेम रहेगी एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट उसका टेक्निक है ना, एप्लीकेशन है, टूल जो हम यूज करने वाले हैं तो अप्लाइड प्रिंसिपल एंड थियरी इट विल बी डिफर इन डिफरेंट सिचुएशन एंड इट विल बी डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो वी कैन से दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स difference there is always a difference between the fundamental and technique in every organization which favor that argument in favor of university. Next one, common problem of effective use of input. Now you know very well that in every organization or in all the organization that require certain common principle, concept and skill of managing for allocating because we every organization like need a certain principles or a concept or a skill to manage for allocation of the time, human capital and so which are the resources of an organization. Human being in human resources, capital being a money resources, time being your time management of your activity. तो ये एलोकेशन करना है, टाइम को एलोकेट करना है, ह्यूमन को एलोकेट करना है, कैपिटल को एलोकेट करना है. वी नीड टू रिक्वायर सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स. ठीक है, जनरली वी नो दैट वी सी दैट मैनेजर शिफ्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर एंड फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर. तो चेंज जो इंडिकेट हो रहा है सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल एंड स्किल्स एट ऑल द काइंड ऑफ वर्क में सेम है. मतलब कॉमन प्रॉब्लम जो इफेक्टिव यूज ऑफ इनपुट करना चाहिए वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही रहने वाला है. ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिव वे में यूज करना, टाइम को इफेक्टिव वे में यूज करना, मनी बीइंग अ कैपिटल रिसोर्सेज उसको यूटिलाइजेशन करना वो हर एक organization में सेम रहने वाला है. सो दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ इनपुट्स. दैट इज अ आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सिटी. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूनिवर्सिटी. मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिससे हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, वी नो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन द टाइप ऑफ मैनेजमेंट being required. Because of difference in objective, the skill and experience in management can be transferred and applied from one organization to another. याद रखना कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव होता है और यही डिफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव के कारण डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट वी नीड टू हैव एंड उसी के कारण दे आर ट्रांसफरिंग द मैनेजमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. तो वी कैन से दैट अ पर्सन कैन नॉट हैव अ equal effectiveness in the different types of organization because the objective are different and that is an argument which is favoring कि management is not a university.
नेक्स्ट वन, डिफरेंस इन फिलोसफी। फिलोसफी मतलब आपका खुद का एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वेरियस एक्टिविटी। ठीक है, फिलोसफी डिटरमाइन द काइंड ऑफ मैनेजर टेक्निक। ठीक है, इट जस्ट इन्फ्लुएंस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, कम्युनिकेशन स्टाइल। फिलोसफी मतलब अपना खुद का एटीट्यूड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द एक्टिविटी मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वे में मैनेज करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी वो कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। तो ये हर एक डिफरेंस होगा, देयर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंस इन अ फिलोसफी ऑफ अ पर्सन, बिकॉज इक्वल इफेक्टिवनेस कभी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शो नहीं होगा। बिकॉज बीइंग अ मैनेजर यू विल अप्लाई अ डिफरेंट फिलोसफी, बिकॉज एवरी मैनेजर हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड, और उसी के थ्रू वो डिफरेंट फिलोसफी यूज करेगा। उसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वो डिटरमाइन करेगा, ऑथोरिटी डेलीगेट करना उसका दूसरा तरीका होगा, कम्युनिकेशन स्टाइल करने का उसका दूसरे वे में वो कम्युनिकेशन स्टाइल कम्युनिकेशन करेगा। तो हर एक की फिलोसफी ऑफ द मैनेजर आर बीइंग डिफर, उसके बेस में हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ आर्गुमेंट अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी कि मैनेजमेंट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, डिफरेंस इन कल्चर। यू नो दैट कल्चर मीन्स योर एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। नाउ कल्चर डिटरमाइन अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट बीइंग रिक्वायर्ड। आप देखोगे कि एवरी कंट्री एंड इवन ईच कंट्री एंड इवन विद इन अ कंट्री ऑल्सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डिफरेंट कल्चर। यू हैव सीन दैट। आप अपने फैमिली में भी देखोगे, आप अपने हिंदू फैमिली में भी देखोगे, एवरी कास्ट एवरी सब कास्ट आर हैविंग अ डिफरेंट कल्चर। ठीक है, हर एक का कल्चर जो है फैमिली टू फैमिली आप देखोगे, हर एक स्टूडेंट्स का हर एक खुद की फैमिली जो है वो हर एक का कल्चर डिफर रहेगा। ठीक है, तो ईच कंट्री एंड इवन विद इन अ कंट्री ऑल्सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच हैव अ डिफरेंट कल्चर। तो कल्चर डिफरेंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज मैनेजमेंट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी। बिकॉज आप देखोगे अमेरिकन का प्रैक्टिस और जापानीज का प्रैक्टिस इन परफॉर्मिंग द मैनेजमेंट फंक्शन इज वेरी डिफर। अमेरिकन में शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड प्लानिंग करेंगे और जापानीज में लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड करेंगे। अमेरिकन प्रैक्टिस में ऑर्गेनाइजिंग जो होगा वो इंडिविजुअल करेगा, जापानीज में वो ग्रुप वाइज करेगा। ठीक है, अमेरिकन में प्रैक्टिस में स्टाफिंग जो करेगा वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट करेगा, बट जापानीज में वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा। अमेरिकन की प्रैक्टिस के हिसाब से मोटिवेशन मतलब हमें खुद से ही करना है, और जापानीज वे में प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रुप मोटिवेशन होगा। और कम्युनिकेशन जो अमेरिकन प्रैक्टिस में होगा वो टॉप टू डाउन होगा, बट जापानीज में वो बॉटम टू अप होगा। तो दिस कल्चर अमंग द performing the management function among the American and Japanese is differing, so we can justify that arguments against the university. So various arguments for and against the University of Management should be analyzed so that we can arrive to a particular conclusion. So we need to identify the certain principles which are universally, though their practice may differ from country to country or from organization to organization, even within the same country. Certain principle हम identify करना है जिससे हम बोल सकते हैं कि this principle are universally through which we can say that प्रैक्टिस जो होगा वो डिफर रहेगा कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होगा ना वो यूनिवर्सल रहेगा, पर उसका जो प्रैक्टिस होगा ना दैट विल बी डिफर। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड learn well. Thank you students for listening.